Hello friends, welcome back in my another lecture. As you know, we were doing network techniques from last lecture, right? So today I'm going to start with critical path analysis, right? As we know, when we have some project in hand, when some management have some project in hand, we first of all draw network diagram, network diagram for that, and network diagram consists of various activities and events, right? And we required to find what will be the starting and finishing time for each activities and events, and what will be the total project duration, 2 साल का 3 साल का है, right? So main objective of critical path analysis is what will be the estimate time for project duration, and what time must be assigned for the starting and finish, but starting and finishing time must be assigned for each activities and events, right? That is all, that all can be done through critical path analysis, right? This helps, इसे ऐसा करने से क्या हो जाएगा, this helps in checking actual progress against the scheduled ड्यूरेशन ऑफ द प्रोजेक्ट, ठीक है? अगर मान लो हमने ड्यूरेशन ऑफ प्रोजेक्ट 4 साल रखा, हमने 1 ईयर में, 2 मंथ में, 3 मंथ में, हाफ ईयर में कितना काम चेक किया, दैट कैन बी, वी कैन चेक द एक्चुअल प्रोग्रेस थ्रू दिस क्रिटिकल पाथ एनालिसिस. Duration of the project, right? And there are various factors that one must know before preparing the project scheduling, and those factors are: number one, total completion time of the project. Total completion time project का कितना है, this one must know. Second factor is earlier and latest start time of each activity. अर्लीस्ट और लेटेस्ट स्टार्ट टाइम हर एक एक्टिविटी का क्या है, नेटवर्क डायग्राम, राइट? एंड थर्ड फैक्टर इज फ्लोट फॉर each activity. Float means actually delay, how much any particular activity can be delayed without changing the actual duration of the total duration of the project. That means float, right? Float is actually delay in completion of any activity. And number 4 is a critical activities. What are the critical activities, and what will be the critical path? ये हमारे को पहले पता होना चाहिए in order to schedule a prepare a project scheduling for any particular project, right? As we know, in network diagram actually consists of various activities and events, and we are supposed to find the various times for each activities and events. Notation for, so accordingly हमारे को बहुत सारी notation चाहिए, वो इसमें आएगी. For finding various times for activity या event बोल सकते हैं आप, ठीक है? तो फर्स्ट नोटेशन जो हमारे पास आने वाली है दैट इज ई आई को रीड करेंगे हम अर्लीस्ट अक्रेंस टाइम ऑफ इवेंट आई अर्लीस्ट अक्रेंस टाइम, राइट? दूसरा हमारे पास जैसे एल आई आएगा, एल आई को बोलेंगे हम लेटेस्ट, राइट? लेटेस्ट अक्रेंस टाइम ऑफ इवेंट आई, ये नोटेशंस हमको पता होनी चाहिए, राइट? नेक्स्ट ई एस आई जी आर इन सबस्क्रिप्ट, इसको लेंगे अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम ऑफ अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम फॉर एक्टिविटी आई जी,
जो एक्टिविटी कोई एक्टिविटी होगी और एक्टिविटी आई जे। इस तरह से नंबर 4 जो चौथी नोटेशन आने वाली है दैट इज एल एस आई जे। एल एस को बोलेंगे लेटेस्ट स्टार्ट टाइम, राइट। दिस इज लेटेस्ट स्टार्ट टाइम फॉर एक्टिविटी, कोई भी एक्टिविटी होगी जनरल में आई जे, राइट। एंड नंबर 5 इज ई एफ आई जे, इसको बोलेंगे अर्लीस्ट फिनिश टाइम, अर्लीस्ट फिनिश टाइम, yes I earliest finish time for activity ij, right। नंबर 6 है एल एफ आई जे, इसको बोलेंगे लेटेस्ट फिनिश टाइम, राइट। लेटेस्ट नाम से लग रहा पता, नोटेशन से लेटेस्ट फिनिश टाइम फॉर एक्टिविटी आई जे। एंड लास्ट बट नॉट लिस्ट इज द टी आई जे। टी आई जे को क्या रीड करेंगे हम, टी आई जे मीन ड्यूरेशन ऑफ एन एक्टिविटी, ड्यूरेशन भी टाइम में ही होगा, ड्यूरेशन ऑफ एन एक्टिविटी आई जे। किसी पर्टिकुलर एक्टिविटी का ड्यूरेशन टाइम क्या होगा, कंप्लीशन टाइम क्या होगा, स्टार्ट से फिनिश तक कब फिनिश हो रही है, राइट, राइट फ्रॉम स्टार्ट टू फिनिश, that will be decided by TIG, right? Now I'm going to discuss some method. First is forward pass method, and this forward pass method is for finding, ये होता है E find करने के लिए, right? E, this is for finding E. E means earliest time, earliest event time. This is earliest event time. इसको बोलेंगे हम earliest event टाइम। फॉरवर्ड पास मेथड में एक्चुअली में होगा क्या, जैसे हमारे पास नेटवर्क डायग्राम ऑलरेडी जब बना होगा, वी विल गो फ्रॉम इनिशियल इवेंट, ये इनिशियल इवेंट जैसे आई है, अप टू द फाइनल इवेंट, राइट। फाइनल इवेंट, इनिशियल इवेंट आई से फाइनल, इस डायरेक्शन में जाएंगे हम, मीन्स फ्रॉम लेफ्ट टू राइट जाएंगे इन द प्रोजेक्ट डायग्राम, राइट। और ये कंटिन्यू चलेगा, फाइनल इवेंट तक चलेगा, राइट। हर एक इवेंट, एक्चुअली देयर आर लॉट्स ऑफ इवेंट इन बिटवीन, ठीक है, देयर आर लॉट्स ऑफ इवेंट एक्टिविटीज इन बिटवीन, एंड एट ईच इवेंट, हर एक इवेंट पर हम क्या करेंगे, हम वी विल कैलकुलेट ई अर्लीस्ट टाइम, अर्लीस्ट स्टार्ट एंड फिनिश टाइम भी हम निकालेंगे हर एक एक्टिविटी के लिए, राइट, वट एवर द एक्टिविटीज वी हैव। एंड ये प्रोसेस कंटिन्यू चलेगा, हर एक एक्टिविटी के लिए हमने ई अर्लीस्ट टाइम और फिनिश टाइम निकालना है, एंड दिस प्रोसेस विल कंटिन्यू, राइट। दिस प्रोसेस will be continue till final event, जब तक हम फाइनल लास्ट इवेंट पर नहीं पहुंचेंगे, राइट, फाइनल इवेंट। एंड देयर आर सर्टन रूल्स दैट वी हैव टू फॉलो। रूल 1 है, हम सबसे पहले हम सेट करेंगे E1 को हम सपोज करेंगे 0, E1 इसमें जो मीन्स हमने आई को, इनिशियल इवेंट आई को हमने 1 सपोज किया है, राइट। एंड सेकेंड रूल इज हम कैलकुलेट करेंगे अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम, वी विल कैलकुलेट अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम, जिसको हम ESIJ से डिनोट करते हैं, एज यू कैन सी हियर, अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम फॉर ईच एक्टिविटी, हर एक एक्टिविटी के लिए हम ये निकालेंगे अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम, राइट, दैट बिगिंस एट इवेंट, जो आई इवेंट पर स्टार्ट हुआ है, और इवेंट आई, और आई को हमने क्या सपोज किया हुआ है 1, फर्स्ट इवेंट सपोज किया है। ऑल्सो इसमें जो अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम ESIJ, इसको हम लेंगे आई मीन्स ये एक्चुअली में I1 ही है, तो I1 से स्टार्ट किया तो E1 ही होगा, राइट, फॉर ऑल एक्टिविटी, हर एक एक्टिविटी के लिए यही होगा, फॉर ऑल एक्टिविटी IJ स्टार्टिंग एट, कोई एक्टिविटी IJ है स्टार्टिंग एट इवेंट आई, राइट, स्टार्टिंग एट इवेंट आई। जैसे मान लो एक्टिविटी 2, 3 है, तो वो स्टार्ट कहाँ पर होगी 2 पर, 3, 4 है वो 3 पर स्टार्ट होगी। एंड थर्ड रूल इज हमको कैलकुलेट करना है अर्लीस्ट फिनिश टाइम, पहले तो अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम था, कैलकुलेट अर्लीस्ट, आप देख सकते हैं यहाँ पर हमको निकालना है अर्लीस्ट स्टार्ट एंड फिनिश टाइम, अर्लीस्ट फिनिश टाइम निकालेंगे अब हम, अर्लीस्ट
फिनिश टाइम जिसको हम ई एफ आई जे से डिनोट करते हैं, एज वी नो फ्रॉम द नोटेशन। अर्लिएस्ट फिनिश टाइम फॉर ईच एक्टिविटी, हर एक एक्टिविटी के लिए हम ये निकालेंगे, फॉर ईच एक्टिविटी दैट बिगिंस एट इवेंट आई, राइट। और ऑल्सो जो हमने अर्लिएस्ट फिनिश टाइम ई एफ आई जे है, एंड दिस इज एक्चुअली इक्वल टू ई एस आई जे प्लस टी आई जे, ड्यूरेशन ऑफ द एक्टिविटी, राइट। एंड व्हाट इज ई एस आई जे? ई एस आई जे इज ई आई, सो एज वी नो फ्रॉम रोल 2, this is ei plus tij, right? This is for all activity i j, हर एक आई जी। तो अर्लीस्ट फिनिश टाइम हम इस तरह से देंगे, सो दिस इज अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम प्लस ड्यूरेशन ऑफ द दैट एक्टिविटी, राइट। टी आई जे वी नो, टी आई जे इज द ड्यूरेशन ऑफ द पर्टिकुलर एक्टिविटी आई जे। एंड नाउ कम टू रूल 4। रूल 4 मीन्स अब कंटिन्यू ऐसे चलेगा, प्रोसीड टू, अब ये तो पहले इवेंट आई 1 की बात हुई, अब हम नेक्स्ट इवेंट को प्रोसीड करेंगे, प्रोसीड टू इवेंट, इवेंट मीन नेक्स्ट इवेंट को प्रोसीड करेंगे, प्रोसीड टू नेक्स्ट इवेंट जे। अगर पहला 1 है तो दूसरा 2 आएगा, आई है तो जे है, इन द सीक्वेंस, जो भी नेक्स्ट इवेंट होगा इन द सीक्वेंस, इन द सीक्वेंस, राइट। वेयर इसमें जो जे आ रहा है, j is definitely greater than 1 बिकॉज हम लेफ्ट टू राइट मूव कर रहे हैं, राइट। दिस इज रूल 4। अब नेक्स्ट इवेंट के लिए हम सारा यही चीज़ें निकालेंगे, अर्लिएस्ट स्टार्ट टाइम एंड अर्लिएस्ट फिनिश टाइम, हर एक एक्टिविटी के लिए हमने यही करना है, राइट। नाउ ये रूल थे। नाउ कम टू नेक्स्ट रूल 5। अब हम रूल 5 में क्या करेंगे, अब हम यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे अर्लीस्ट अकरेंस टाइम, अर्लीस्ट अकरेंस टाइम जिसको हम ई जी से डिनोट किया हमने, अर्लीस्ट अकरेंस टाइम ऑफ जे इवेंट के लिए कर रहे हैं ई जे, राइट, ऑफ इवेंट जे, और जे हमारे पास क्या है, जे इज ग्रेटर देन आई, फर्स्ट इवेंट से ये बड़ा है, राइट। एंड ई जे अर्लीस्ट अकरेंस टाइम, दिस इज इक्वल टू मैक्सिमम ऑफ ई अर्लीस्ट फिनिश टाइम एफ आई जे, अर्लीस्ट फिनिश टाइम ई एफ आई जे हमने रूल 3 में निकाला था, तो रूल 3 में इसकी वैल्यू क्या थी, ये था हमारे पास ई आई प्लस टी आई जे, राइट। रूल 3 में हमने निकाला था ई अर्लीस्ट फिनिश टाइम टी आई जी। और इसको बोले ये ऐसा मैक्सिमम किसके लिए करेंगे, फॉर ऑल इमीडिएट प्रीडेसर एक्टिविटीज़ के लिए करेंगे, प्रीडेसर एक्टिविटीज़। और जे इवेंट के इमीडिएट जो पीछे वाली जो एक्टिविटीज़ होंगी उसके लिए हमें मैक्सिमम निकालेंगे, राइट। अगर मान लो जे 3 है, इट मीन्स इसके इमीडिएट पीछे कौन सी आएगी, 2 एक्टिविटी आएगी, E1 और E2, उसके लिए हमें मैक्सिमम, उन दो में से मैक्सिमम जो भी होगा वो यहाँ पर वैल्यू आएगी, राइट। रूल 6, लेट अस सपोज हम फाइनल, अब जे हमारे पास n है, हम लास्ट इवेंट पर पहुँचिए, इफ जे इज इक्वल टू n फाइनल इवेंट, राइट, देन अर्लीस्ट फिनिश टाइम फॉर द प्रोजेक्ट, दैट इज, इसको हम अर्लीस्ट फिनिश टाइम बोलेंगे, या तो बोल सकते हैं अर्लीस्ट अकरेंस टाइम जिसको हम ई एन से डिनोट करेंगे, दिस इज फॉर फाइनल इवेंट, अर्लीस्ट अकरेंस टाइम फॉर द फाइनल इवेंट, राइट। फॉर फाइनल इवेंट इज गिवन बाय, उसको हम कैसे देंगे, इज गिवन बाय, उसको हम ई एन से डिनोट करेंगे, अर्लीस्ट अकरेंस टाइम ई एन, एंड दिस इज इक्वल टू मैक्सिमम ऑफ अर्लीस्ट फिनिश टाइम एफ आई जे, राइट, एंड विच विल बी इक्वल टू मैक्सिमम ऑफ, ये जो दिस विल बी ई एन -1
plus Tij, right? This is earliest occurrence time for the final event n, और en minus 1 means final pre-final event होगा ये n minus 1, and this is Tij is the duration of the activities for all it, हर एक टर्मिनल एक्टिविटीज़ के लिए करेंगे, फॉर ऑल टर्मिनल एक्टिविटीज़, जो भी टर्मिनल एक्टिविटीज़ होगी, राइट, हर एक टर्मिनल एक्टिविटीज़ के लिए हम ये चीज़ निकालेंगे ई एन, दिस अर्लीस्ट फिनिश टाइम फॉर द फाइनल इवेंट, राइट. सो दिस इज ऑल अबाउट, देर आर सम 6 rules that we have to follow, right, while calculating earliest occurrence time of earliest time for the event, right, by using forward pass method and backward pass method. This is just ऑपोजिट ऑफ द प्रीवियस मेथड. हमने पहला मेथड आई से एन इनिशियल से फाइनल गए थे, तो इस केस में क्या होगा, हम फाइनल इवेंट से बैकवर्ड डायरेक्शन में आएंगे इनिशियल इवेंट को, राइट. इन बिटवीन देर आर लॉट्स ऑफ इवेंट्स एक्टिविटीज़, राइट. तो इस डायरेक्शन में जाएंगे हम राइट टू लेफ्ट. सो हम क्या करेंगे, फाइनल इवेंट से जाएंगे, गो थ्रू ऑल द इवेंट्स एंड ये एंड होगा इनिशियल इवेंट पर, राइट. और एट ईच इवेंट हमको क्या फाइंड करना है, हमको फाइंड करना है एल लेटेस्ट अकरेंस टाइम, एल और लेटेस्ट फिनिश एंड स्टार्ट टाइम. पहले मैंने फाइंड किया था अर्लीस्ट फिनिश एंड स्टार्ट टाइम, इस केस में फाइंड करेंगे हम लेटेस्ट फिनिश एंड स्टार्ट टाइम फॉर ईच एक्टिविटी, जितनी भी एक्टिविटी नेटवर्क डायग्राम्स में होगी, राइट. एंड दिस प्रोसेस ये कंटिन्यू चलेगा, फाइनल इवेंट से चले, फाइनल इवेंट प्री फाइनल देन फर्दर प्री फाइनल, दिस कंटिन्यू टिल द इनिशियल इवेंट. ये इनिशियल इवेंट था कंटिन्यू, इनिशियल इवेंट 1 तक चलेगा, राइट. देयर आर सर्टेन रूल्स दैट वी हैव टू फॉलो. रूल 1 हम सेट करेंगे, जो दिस इज लेटेस्ट अकरेंस टाइम फॉर द फाइनल इवेंट, और ये किसके इक्वल होगा, ई एन. ई एन मीन्स जो हम फॉरवर्ड पास मेथड निकाला हमने, राइट. और जे को हमने क्या सपोज किया है, और जे को हमने सपोज किया फाइनल इवेंट, राइट. एंड वेयर, इसमें जो ई एन आ रहा है, वेयर ई एन इज नॉन फ्रॉम, इसको नॉन किया मैंने फ्रॉम फॉरवर्ड पास मेथड, और जो अभी हमने फिनिश किया फॉरवर्ड पास मेथड. तो दिस इज अकरेंस टाइम ऑफ द फाइनल इवेंट, जो हमने पहले स्टेप में होगा. लेट अस सपोज इट्स वैल्यूज 2, तो इट मीन्स लेटेस्ट अकरेंस टाइम ऑफ फाइनल इवेंट भी क्या होगा, 2 ही होगा. रूल नंबर 2, कैलकुलेट लेटेस्ट. अब हम लेटेस्ट फिनिश टाइम निकालेंगे, लेटेस्ट फिनिश टाइम, जिसको हम एल एफ इससे डिनोट करते हैं, एज वी नो द नोटेशन ऑफ ईच एक्टिविटी के लेकर निकालेंगे, ऑफ ईच एक्टिविटी दैट एंड्स एट जे, जो भी एक्टिविटी जे पर एंड होगी, राइट. ऑल्सो लेटेस्ट फिनिश टाइम एल एफ आई जे, ये किसको इक्वल होएगा, एल जे के इक्वल, क्योंकि जे को अगर हमने फाइनल इवेंट सपोज किया है फॉर ऑल एक्टिविटीज आई जे, राइट, एंडिंग एट जे, जो जे पर एंड हो रही है, एंडिंग एट जे. नाउ थर्ड रूल इज, अब हम कैलकुलेट करेंगे लेटेस्ट स्टार्ट टाइम. पहले मैंने फिनिश टाइम निकाला, अब चाहे मेरे को स्टार्ट टाइम, कैलकुलेट लेटेस्ट स्टार्ट टाइम, जिसको हम एल एस आई जे से डिनोट करेंगे, लेटेस्ट स्टार्ट टाइम को फॉर ईच एक्टिविटी. ये भी हम हर एक एक्टिविटी के लिए निकालेंगे, राइट, एट जे, जो जे पर एंड हो रही है, राइट. ऑल्सो अब हम यहाँ पर निकालेंगे लेटेस्ट स्टार्ट टाइम, जो एल एस आई जे, एंड दिस इज कल टू जो लेटेस्ट फिनिश टाइम में से अगर हम आई जे ड्यूरेशन ऑफ द एक्टिविटी आई जे निकालते हैं, तो हमारे पास ये बचेगा. इसको हम एल जे भी बोल सकते हैं, बिकॉज एल एफ, दिस इज एल जे फ्रॉम रूल 2 एंड दिस इज टी आई जे. अगर हम लेटेस्ट फिनिश टाइम में से ड्यूरेशन ऑफ द एक्टिविटी आई जे निकालते हैं, तो हमारे पास क्या बचेगा, लेटेस्ट स्टार्ट टाइम बचेगा. दिस इज फॉर ऑल एक्टिविटीज आई जे, राइट, एंडिंग एट जे, जो जे पर एंड हो रही है, एंडिंग एट जे. अभी हम रिवर्स प्रोसेस में चलें, राइट, फाइनल इवेंट टू इनिशियल इवेंट. और फोर्थ स्टेप क्या, कंटिन्यूस थे, पहले हमने फाइनल इवेंट था, और प्री फाइनल इवेंट पर आएंगे. जैसे फाइनल इवेंट को अगर जे सपोज किया, तो प्री फाइनल इवेंट जे -1 होगा. अगर फाइनल इवेंट 10 है, तो प्री फाइनल हमारा 9 हो जाएगा, राइट. प्रोसीड बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएंगे टू इवेंट
टू इवेंट j -1 बिकॉज हमने फाइनल इवेंट को j सपोज किया था विच इज कॉल्ड दिस इन द सीक्वेंस। जो भी प्री फाइनल इवेंट होगा सीक्वेंस में वहाँ पर हम मूव करेंगे, राइट। नाउ कम टू रूल 5। रूल 5 अब हम कैलकुलेट करेंगे लेटेस्ट अकरेंस टाइम। इसमें सब कुछ लेटेस्ट ही है, पहले वाले में अर्लीस्ट था ई। कैलकुलेट अर्लीस्ट सॉरी लेटेस्ट अकरेंस टाइम, अकरेंस टाइम जिसको हम एल आई से डिनोट करेंगे, राइट, ऑफ इवेंट आई, ऑफ इवेंट आई। और आई इस केस में क्या है, आई इज लेस देन जे बिकॉज बैकवर्ड डायरेक्शन में जा रहे हैं हम। एंड जो एल आई होगा हमारे पास लेटेस्ट अकरेंस टाइम, दिस विल बी इक्वल टू मिनिमम, जस्ट ऑपोजिट, पहले मैक्सिमम तो मिनिमम होगा, मिनिमम ऑफ लेटेस्ट स्टार्ट टाइम एल एस आई जे का मिनिमम होगा, राइट। एंड विच इज इक्वल टू मिनिमम ऑफ एल एस आई जी, इसकी वैल्यू है एल जे माइनस टी आई जे फ्रॉम रूल 3, राइट। दिस विल बी फॉर ऑल इमीजिएट, इमीजिएट पहले प्रीडेसेसर तब सक्सेसर होगा, इमीजिएट सक्सेसर एक्टिविटीज के लिए होगा सक्सेसर एक्टिविटीज। अगर J-1 की जो सक्सेसर उसके आगे वाली जो जितनी भी एक्टिविटीज होगा उनमें से हम जो, अगर मतलब 2 है तो 2 में से जो मिनिमम होगी वो वैल्यू हम बनेगी, राइट। नाउ रूल नंबर 6, लास्ट रूल। इफ J इज इक्वल टू 1, लेट अस सपोज हम इनिशियल इवेंट पर पहुंच गए, इस केस में जैसे आप फाइनल से इनिशियल को जा रहे हैं, इनिशियल इवेंट J इज इक्वल टू 1, राइट। देन जो लेटेस्ट फिनिश टाइम होगा, देन लेटेस्ट फिनिश टाइम फॉर द प्रोजेक्ट, या तो लेटेस्ट फिनिश टाइम को हम ये भी बोल सकते हैं लेटेस्ट अकरेंस टाइम, या ऐसे बोल सकते हैं दैट इज लेटेस्ट अकरेंस टाइम, राइट, जिसको हम L1 बोलेंगे बिकॉज J1 है वो इनिशियल इवेंट पर हम पहुंचे हैं। फॉर द इनिशियल इवेंट, फॉर द इनिशियल इवेंट इज गिवन एज, तो उसके हम उस लेटेस्ट अकरेंस टाइम L1 को क्या देंगे, दिस इज मिनिमम ऑफ लेटेस्ट स्टार्ट टाइम LSIJ, और LSIJ की वैल्यू हमारे पास क्या होगी, दिस विल बी L1 से पहले क्या होगा आपके पास, राइट। जैसे ये J है तो मैं यहाँ J-1 होगा, तो दिस विल बी LJ-1 माइनस TIJ, राइट। दिस इज लेटेस्ट अकरेंस टाइम 1 का। अगर ये 1 है, J को अगर मैंने 1 सपोज किया है, तो आपके पास क्या होगा, J से पहले जो होगा आपके पास लेटेस्ट, उस तरह से उनमें जितनी भी एक्टिविटीज़ होगी आपके पास इस तरह की इमीडिएट सक्सेसर एक्टिविटीज़ होगी, ऐसा बोल सकते हैं फॉर ऑल इमीडिएट। पहले मैं ऊपर टर्मिनल एक्टिविटीज़ का था, ये टर्मिनल एक्टिविटीज़ के लिए था, ये सक्सेसर एक्टिविटीज़ के लिए, फॉर इमीडिएट सक्सेसर एक्टिविटीज़, सक्सेसर एक्टिविटीज़ के लिए, राइट। सो दीज आर द 6 रूल। सो बैकवर्ड पास मेथड हम क्या, कहाँ से कहाँ मूव करेंगे, we will move from final event to initial event, or for each activity we will find latest start and finish time। जबकि फॉरवर्ड पास मेथड में हम कहेंगे इनिशियल टू फाइनल इवेंट, और वहाँ पर हम फाइंड करेंगे अर्लीस्ट स्टार्ट एंड फिनिश टाइम, राइट, इन दिस वे। सो दिस इज ऑल अबाउट these two methods, right। Now moving further, I am going to define various टर्म्स हियर, दैट इज फ्लोट, जिसको हम स्लैक भी बोलते हैं, डिले भी बोलते हैं, ऑफ एक्टिविटी एंड इवेंट। फ्लोट क्या होगा, एक्टिविटी और इवेंट के, कौन किस टाइप की एक्टिविटी होगी, नॉन क्रिटिकल एक्टिविटीज, नॉन, दिस विल बी फॉर नॉन क्रिटिकल एक्टिविटीज के लिए हम ये सारी चीज़ें निकालेंगे फ्लोट्स, राइट। देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ फ्लोट्स। सो आई एम गोइंग टू स्टार्ट विद इवेंट फ्लोट। So what is event float? Event float means the float
of an event is the, this is the difference between, difference is calling difference between its latest, between latest occurrence टाइम, जिसको हम एल आई से डिनोट करते हैं, एंड अर्लीस्ट अकरेंस टाइम, राइट, अर्लीस्ट अकरेंस टाइम, जिसको हम ई आई से डिनोट करते हैं, राइट। दैट इज, इट मीन्स जो हमारे पास इवेंट फ्लोट होगा, इवेंट फ्लोट दैट विल बी इक्वल टू एल आई और ई आई का डिफरेंस, राइट, लेटेस्ट अकरेंस टाइम एंड अर्लीस्ट अकरेंस टाइम, इन दोनों का डिफरेंस। एंड दिस इज एक्चुअली मेजर ऑफ by which time we can, a particular event can be delayed, right, without delaying the completion of the project. And it's a measure of how much later एज एक्सपेक्टेड टाइम से कितने लेट हम एक्टिविटी को डिले कर सकते हैं, राइट। हाउ मच लेटर देन एक्सपेक्टेड a particular event could occur without delaying the completion of the entire project, तो इसका मेजर ये है कि एज एक्सपेक्टेड टाइम अगर किसी एक्टिविटी का है तो उसको हम कितना डिले कर सकते हैं विदाउट डिलेइंग द ओवरऑल कंप्लीशन ऑफ द प्रोजेक्ट, दैट मीन्स इवेंट फ्लोट। एंड नाउ नेक्स्ट कम टू टोटल फ्लोट। टोटल फ्लोट, इट्स द अमाउंट ऑफ टाइम, राइट, कितना टाइम होगा बाय which an activity can be delayed without, amount of time by which an activity can be delayed without affecting the project completion time, right, without affecting the project completion time. And this is given as, इसको हम कैसे देंगे, टोटल फ्लोट है, टोटल फ्लोट, इसको हम डिनोट करेंगे TFIJ से, TF मीन्स टोटल फ्लोट, एंड दिस विल बी इक्वल टू इवेंट फ्लोट। अगर हम इवेंट फ्लोट LI माइनस EJ, इवेंट फ्लोट्स में से अगर हम अर्लीस्ट टाइम ऑफ इवेंट आई निकाल दें फॉर ईच एक्टिविटी IJ, अगर ये हम निकाल दें तो हमारे पास क्या बचेगा, इवेंट फ्लोट में से अगर हम अर्लीस्ट टाइम ऑफ इवेंट आई अगर हम निकाल दें, माइनस कर दें, तो हमारे पास क्या बचेगा, टोटल फ्लोट, राइट, इन दिस वे। Sorry, there is little bit change. LJ, this is total float na, this is LJ, latest occurrence time of event J this is time duration of the activity IJ, this is TIJ, right, this is TIJ। अगर हम LJ माइनस TIJ में से EI निकाल दें तो हमारे पास क्या बचेगा, हमारे पास बचेगा टोटल फ्लोट LJ माइनस TIJ फॉर ईच एक्टिविटी IJ के लिए, ऐसा ही होगा आपके पास। नेक्स्ट कम टू फ्री फ्लोट।
फ्री फ्लोट क्या होता है? इट्स द टाइम बाय विच the completion of activity by which the completion of activity can be delayed, activity can be delayed without causing any delay in its immediate succeeding activities, इसके आगे वाली जितनी भी एक्टिविटी होगी, राइट, विदाउट कॉजिंग एनी डिले इन इट्स इमीजिएट, इमीजिएट जो आगे वाली इसकी एक्टिविटीज़ होगी, इमीजिएट सक्सीडिंग एक्टिविटीज़, एंड इज गिवन एज, इसको हम देंगे कैसे मैथमेटिकली, एंड इज गिवन एज फ्री फ्लोट है, फ्री फ्लोट, तो इसको हम एफ आई जे से डिनोट करेंगे, फ्री फ्लोट, एंड दिस इज इक्वल टू ई जे माइनस ई आई, ई जे माइनस ई आई में से अगर हम टी आई जे निकाल दें, राइट, दिस इज अर्लीस्ट टाइम फॉर इवेंट जे, दिस इज अर्लीस्ट टाइम फॉर इवेंट आई, इसमें से ड्यूरेशन ऑफ एक्टिविटी आई जे हम निकाल दें, राइट, फॉर ईच एक्टिविटी, फॉर ईच एक्टिविटी आई जे, अगर हम इसमें ये चीज़ निकाल दें तो इसको क्या बोलेंगे हम, दिस इज टी आई जे, राइट, मस्ट रिमेंबर, so this is free float, this is earliest time of event j, earliest time of event I minus duration of the activity ij, right. Next come to independent float, it's the amount of time इसको बोलते हैं amount of time an activity can be delayed, किसी एक्टिविटी को कितना टाइम लगेगा डिले करने के, डिलेड फॉर स्टार्ट, कैन बी डिलेड फॉर स्टार्ट, कितना लेट हम किसी एक्टिविटी को स्टार्ट कर सकते हैं, राइट, विदाउट affecting the completion of preceding activities, पीछे वाली जितनी भी एक्टिविटीज होंगी, राइट, कंप्लीशन ऑफ प्रोसीडिंग एक्टिविटीज, किसी एक्टिविटी को हम कितना लेट स्टार्ट कर सकते हैं विदाउट अफेक्टिंग द कंप्लीशन ऑफ प्रीवियस प्रोसीडिंग एक्टिविटीज, और इसको हम देंगे कैसे मैथमेटिकली, एंड इज गिवन एज, इसको बोलेंगे इंडिपेंडेंट फ्लोट है, आई एफ मीन्स इंडिपेंडेंट फ्लोट आई जे, एंड दिस इज इक्वल टू ई जे माइनस एल आई, अगर हम इसमें से अगर टी आई जे निकाल दें, राइट, दिस इज अर्लीस्ट occurrence time of event j, this is latest occurrence time of event I minus duration of the activity ij, right, this is for each activity I j, हर एक एक्टिविटी आई जे के लिए होगा, राइट, इसमें जो जे आ रहा है वेयर जे जो इसमें है दैट इज ग्रेटर देन आई, इसमें भी वैसा ही है, इसमें आप लिख सकते हैं वेयर जे इज ग्रेटर देन आई, राइट, नोट नाउ, नोट वन इज, सो फ्लोट, इसको हम या तो फ्लोट बोलते हैं, वी ऑल्सो कॉल इट एज स्लैक, स्लैक भी बोलते हैं, और फ्री टाइम भी बोलते हैं, राइट, फ्लोट, स्लैक और फ्री टाइम या डिले भी बोलते हैं, राइट, इज द लेंथ ऑफ टाइम टू विच, लेंथ ऑफ टाइम बोलते हैं कितना टाइम होगा, टू विच और नॉन क्रिटिकल,
to which a non-critical activity or event non-critical activity or event can be delayed या बोल सकते हैं हम extended, can be delayed or extended without delaying the total project completion time. टोटल कंप्लीशन प्रोजेक्ट कंप्लीशन टाइम डिले ना हो और इन बिटवीन हम किसी पर्टिकुलर इवेंट एक्टिविटी को कितने टाइम के लिए उसको डिले कर सकते हैं, कितने टाइम के लिए उसको एक्सटेंड कर सकते हैं, राइट, उसको बोलते हैं फ्लोट. नेक्स्ट इज द नेगेटिव ऑफ इंडिपेंडेंट फ्लोट. इंडिपेंडेंट फ्लोट का जो नेगेटिव होगा उसको क्या बोलते हैं? नेगेटिव ऑफ इंडिपेंडेंट फ्लोट, उसको हम जीरो ही कंसीडर करते हैं. इज कंसीडर्ड एज, उसको तो जीरो ही कंसीडर करते हैं. नेगेटिव ऑफ दिस इंडिपेंडेंट फ्लोट हम जीरो कंसीडर करते हैं, राइट. नोट नंबर 3, लेटेस्ट अकरेंस टाइम. लेटेस्ट अकरेंस टाइम is always greater than या equal to earliest occurrence time. Earliest occurrence time mathematically ऐसा भी बोल सकते हैं, that is latest occurrence time means Li is always greater than Ei, right. Latest occurrence time is always greater than Ei for each event I, for each event I. So latest time is always greater than earliest time. नोट नंबर 4, जो इंडिपेंडेंट इवेंट है हमारे पास, इंडिपेंडेंट इवेंट ये होता है लेस देन या तो इक्वल टू फ्री फ्लोट के इक्वल, सॉरी इंडिपेंडेंट फ्लोट, दिस इज नॉट इवेंट, दिस इज इंडिपेंडेंट फ्लोट, दिस इज लेस देन इक्वल टू फ्री फ्लोट, या तो ये लेस देन होता है या तो इक्वल टू फ्री फ्लोट, and free float is further less than equal to total float. So this is the relation between so this is the relation between independent float, free float and total float, right. Note number 5, एक्चुअली में यहाँ आप देख सकते हैं हम बहुत सारी यहाँ पर चीज़ें निकाल रहे हैं. द कैलकुलेशन ऑफ वेरियस, जो वेरियस टाइप के हम फ्लोट्स निकाल रहे हैं, वेरियस फ्लोट्स, दीज कैन हेल्प द मैनेजमेंट या जो डिसीजन मेकर्स हैं, हेल्प द डिसीजन मेकर्स इन डिसीजन मेकर को इससे कुछ हेल्प मिल सकती है इन आइडेंटिफाइंग द अंडर यूटिलाइज्ड रिसोर्सेज. जैसे मैन मटेरियल कॉस्ट, उनमें से कौन सा अंडर यूटिलाइज है, जो ज़्यादा यूज़ नहीं हो. इससे हम ये चीज़ें आइडेंटिफाई कर सकते हैं बाय कैलकुलेटिंग वेरियस फ्लोट्स, राइट. इन द टोटल शेड्यूल, राइट, इन द टोटल शेड्यूल्स. और क्या हमारे पास कितनी पॉसिबिलिटीज है, एंड ऑल्सो फ्लेक्सिबिलिटी, कितनी फ्लेक्सिबिलिटी है हमारे पास इन टोटल शेड्यूल. हम किसी एक्टिविटी के टाइम को आगे पीछे कितना कर सकते हैं, कितना फ्लेक्सिबल है विदाउट चेंजिंग द ओवरऑल ड्यूरेशन ऑफ द प्रोजेक्ट, राइट. फ्लेक्सिबिलिटी एंड possibility of जो अंडर यूटिलाइज रिसोर्स है उसको हम फिर से कितना रीडिप्लॉयमेंट कर सकते हैं. पॉसिबिलिटी ऑफ रीडिप्लॉयमेंट ऑफ रिसोर्सेज जो कम जैसे यूटिलाइज हो रहे हैं,
अंडर यूटिलाइज्ड है उनको कितना कर सकते हैं हम। तो बाय कैलकुलेटिंग वेरियस फ्लोट्स वी कैन आइडेंटिफाई और डिसीजन मेकर्स और मैनेजमेंट कैन आइडेंटिफाई which resource is underutilized, resource in main material cost, and how much is the flexibility in total schedule, and what are the possibilities of redeployment of the resources. All these things can be done by calculating these various kinds of floats, right? Now come to the critical path. अब critical path क्या होता है, right? It's the continuous chain of critical, this is continuous chain of critical activities in a network, in a network diagram, right? This is continuous chain of critical activity network diagram, and also it's the longest path होगा ये, it's the longest path starting from first to last event. longest path होगा starting from first to last event, right? and is, और इसको हम कैसे लगेगा पता, हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कोई पाथ क्रिटिकल होगा, एंड इट इज शोन बाय, इसको हम थिक लाइन से शो करते हैं, शोन बाय थिक लाइन, या तो थिक लाइन से शो करेंगे और वाई डबल लाइन भी हम नेटवर्क डायग्राम में ड्रॉ कर सकते हैं, डबल लाइन, दैट मीन्स क्रिटिकल पाथ है, डबल लाइन्स इन द नेटवर्क, in the network diagram, right? and can be, ये तो चलो लॉन्गेस्ट पाथ हो गया, कंटिन्यूस चेन क्रिटिकल एक्टिविटीज़ की हो गई। अब कैसे लगेगा आइडिया एग्जैक्टली ये क्रिटिकल पाथ ही होगा, राइट? एंड कैन बी आइडेंटिफाइड, उसके लिए एक दो रूल है हमारे पास, एंड कैन बी आइडेंटिफाइड वाई पैरा, जो रूल है हमारे पास, दैट इज फॉर ऑल एक्टिविटीज आई जे, जो भी एक्टिविटी आई जे होगी हमारे पास, लाइंग ऑन द क्रिटिकल, जितनी भी एक्टिविटी होगी हमारे पास ऑन द क्रिटिकल पाथ, ई अर्लीस्ट टाइम एंड लेटेस्ट टाइम, ई और एल वैल्यूज जो हमारे पास आएगी, जो फॉरवर्ड और बैकवर्ड पास मेथड से आएगी, वैल्यूज फॉर इवेंट्स आर इक्वल, ई और एल वैल्यूज हमारे पास इक्वल होनी चाहिए, राइट? दैट इज ई आई मस्ट बी इक्वल टू एल आई एंड ई जे मस्ट बी इक्वल टू एल जे। तो अर्लीस्ट टाइम ऑफ इवेंट आई मस्ट बी इक्वल टू लेटेस्ट टाइम ऑफ इवेंट आई। सिमिलरली अर्लीस्ट टाइम ऑफ इवेंट जे मस्ट बी इक्वल टू लेटेस्ट टाइम ऑफ इवेंट जे, हर एक एक्टिविटी आई जे के लिए। अगर एक्टिविटी 1 2 है तो E1 मस्ट बी इक्वल टू L1 एंड E2 मस्ट बी इक्वल टू L2 एटसेट्रा, राइट? एंड रूल नंबर 2 जो हमारे पास है, दैट इज ई जे माइनस ई आई, जो है एज वाला डिफरेंस किसके इक्वल हो, एल जे माइनस एल आई की इक्वल हो, एंड दिस मस्ट बी इक्वल टू ड्यूरेशन ऑफ द एक्टिविटी आई जे फॉर each एक्टिविटी आई जे, राइट? अगर हमारे पास एक्टिविटी 1 2 है, सो E2 माइनस E1 मस्ट बी इक्वल टू L2 माइनस L1 एंड विच इज इक्वल टू T1 2, ये सारे आपस में क्या हो, इक्वल है फॉर ईच एक्टिविटी आई जे। इफ these two conditions are satisfied, then we can immediately claim that this particular chain is in a network diagram is a critical path, right? Note number 1, the length of critical path की लेंथ क्या होगी, the length of the critical path
लेंथ ऑफ द क्रिटिकल पाथ उसको बोलते हैं इज द सम ऑफ द individual, this is some of the individual times of all the critical activities lying on it। टाइम तो दिया दिया होता हर एक एक्टिविटीज़ के लिए, जो जो एक्टिविटी क्रिटिकल पाथ में इन्वॉल्व हो रही है उनके सभी टाइम का आपस में अगर हम सम निकाल दे, राइट, एंड lying on it and defines the, इसको बोलते हैं मिनिमम टाइम, और उसको बोलेंगे हम जो सम हमारे पास जितना आएगा टाइम के फॉर्म में, और उसको बोलते हैं मिनिमम टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट द प्रोजेक्ट। वो हमारे उससे हमारे को आइडिया हो जाएगा कि मिनिमम कितना टाइम चाहिए हमारे को किसी भी प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए बाय यूजिंग दिस नेटवर्क टेक्निक टू रिक्वायर्ड टू कंप्लीट द प्रोजेक्ट, राइट। सो लेंथ ऑफ क्रिटिकल पाथ निकालेंगे हम, सभी क्रिटिकल एक्टिविटीज़ का टाइम को हम सम करेंगे, राइट, और दैट विल decide the minimum time that is required to complete the project। नोट नंबर 2, क्रिटिकल एक्टिविटी को हम क्रिटिकल एक्टिविटी बोलते क्यों हैं इन नेटवर्क डायग्राम? क्रिटिकल एक्टिविटीज इन नेटवर्क डायग्राम आर कॉल्ड, सो रीजन क्या है? बिकॉज delay in their execution, delay in their execution means critical activities, delay in their execution will cause further, delay in the execution of the critical activities will cause further delay in the प्रोजेक्ट कंप्लीशन टाइम, राइट। जितनी क्रिटिकल एक्टिविटीज़ को आप डिले करेंगे उतना ही हमारा टोटल प्रोजेक्ट ड्यूरेशन भी, प्रोजेक्ट कंप्लीशन टाइम भी डिले हो जाएगा, राइट। राइट, thus all the activities having zero total float values are identified as critical activities। So critical activities are called so because if we delay in the execution of these activities, this will delay further the project completion time, right। thus हम ये भी बोल सकते हैं the critical activities जिनका जीरो टोटल फ्लोट होगा, और ऐसी है जितनी भी एक्टिविटी जिनका जीरो टोटल फ्लोट होगा उनको हम क्या बोलेंगे? क्रिटिकल एक्टिविटीज़। या तो हम यहाँ से भी क्लैरिफाई कर सकते हैं जिनका ई और एल वैल्यू आपस में इक्वल आएगा। ई वैल्यूज आर इवेल्युएटेड बाय फॉरवर्ड पास मेथड एंड एल वैल्यूज आर इवेल्युएटेड बाय बैकवर्ड पास मेथड्स, राइट। सो friends, in this lecture what we have learned, we come to know that what will be the critical path analysis and what is its objective in a project diagram or in project diagram in the project, and what are the various notations for finding times of different activities and events in the
network diagram, right? Then we come to know about forward pass method and backward pass method, and which evaluate earliest earliest start time and latest start time, right? Then we have defined various kinds of floats, and finally critical path, length of critical path, and why critical activities are called so, right? So this is all about this lecture. Thank you.